Good morning and Jahan students. Welcome in class 11th science. Today we will study about two topics only. One is your resonance that was taught to you in my last video, and thereafter we will test this topic, that is VSEPR theory. What is the full form of VSEPR? Just try to understand only the full form. V valence shell electron pair repulsion theory. That is what we will study today. And now I am moving my work from resonance that I taught you in my last video, and you just try to understand what is resonance. I am putting it before you so that you can revive the lesson that I have taught you. And resonance is a phenomena in which a single molecule is represented by different electronic diagram, and each electronic diagram satisfies the law of octet. That is your resonance. So last day, in my last video, I told you what was the problem in chemistry which led to the discovery of this theory in chemistry, or this concept in chemistry, and that was what you can say, certain molecules. I put for your example this molecule, that is benzene. So you know that in benzene at alternate positions, double and single bonds are arranged. When this molecule was studied, when the things were analyzed spectroscopically, then what observation came? The observation came, number one, the bond length is bigger than double bond, and is smaller than single bond. This observation was found. And second observation was the bond formation energy or the bond dissociation energy. The bond dissociation enthalpy was less than double bond and more than single bond, and more than single bond. This was observed in this molecule. And one remarkable observation was that all bond lengths were equal. All bond lengths were equal, and all bond dissociation enthalpies were equal. There are the three objections about this molecule, that is benzene. So what are the three objections? Now for your better understanding, the concept of chemistry, I am doing my lecture in Hindi language. इस बेंजीन मॉलिक्यूल में तीन प्रकार की विसंगतियां पाई गई। विसंगतियां क्या है? जैसा कि आप इस मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ हमेशा सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमेशा डबल बॉन्ड का ज्यादा होता है और सिंगल बॉन्ड का कम होता है। लेकिन इस मॉलिक्यूल में जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेजरमेंट किया गया तो पाया गया कि बॉन्ड लेंथ सारे के सारे इक्वल है। और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है? बॉन्ड लेंथ किस रूप में पाया गया कि बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड से छोटा है लेकिन डबल बॉन्ड से बड़ा है। ये बीच की स्थिति पाई गई।
और सारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है सभी जगहों पर क्या हुई, बराबर मिली। जबकि हमको मालूम है कि डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो यहां जो एनर्जी मिल रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो मिल रही है वो डबल बॉन्ड से कम और सिंगल बॉन्ड से ज्यादा की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इस जगह पर मिल रही है। तो इस तरह की विसंगति का जो निराकरण किया गया, जिस कॉन्सेप्ट के द्वारा केमिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट इस प्रकार की विसंगतियों के बारे में अपनी बात को रखता है, समझाता है, वही कॉन्सेप्ट आपका रिजोनेंस कहलाता है। तो रिजोनेंस क्या है? रिजोनेंस एक ऐसी घटना है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल को कई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूले से दर्शाए जा सकते हैं, जिनमें हर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑक्टेट लॉ को सेटिस्फाई करेगा। अगर किसी मॉलिक्यूल के एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम्स बन सकते हैं जो ऑक्टेट लॉ के अंतर्गत बन रहे हों, तो इस प्रकार की घटना रिजोनेंस कहलाती है। अब ये रिजोनेंस है। अब रिजोनेंस में हम लोग जैसे बेंजीन को उठाए हैं तो बेंजीन का रिजोनेटिंग डायग्राम्स हम लोग निकालेंगे। तो जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम्स होते हैं उन्हें हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? उसे हम लोग कैनोनिकल डायग्राम्स कहते हैं। इस शब्द को याद रखना है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम्स of a single molecule is called canonical diagrams. इसे हम लोग कैनोनिकल डायग्राम्स कहते हैं। अब कैनोनिकल डायग्राम्स अगर बेंजीन का बनाया जाए तो कितना कैनोनिकल डायग्राम्स बनता है ये हम लोग देखेंगे बोर्ड पर। और बेंजीन में आपको मालूम है कि सिंगल और डबल बॉन्ड जो होते हैं अल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं। यहाँ हमने अल्टरनेट पोजीशन पर लगा दिया। अब रिजोनेंस बनाने के लिए हम लोग डबल एरो लगाते हैं छोटी सी लाइन सेगमेंट पर। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे। तो डबल बॉन्ड जैसे यहाँ लगाया है हम उसको उठा के यहाँ लगाते हैं तो ये नया पोजीशन अपना लेता है इस रूप में, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन और हम शिफ्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड में ये 1 नंबर का कार्बन है और ये 6 नंबर का कार्बन है, इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दें तो ये स्ट्रक्चर इस रूप में है। इसके बाद डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर हम लोग लगाना चाहें तो यहाँ से ऐसे लगाते हैं, ये आपका 2 नंबर है और 1 2 3 4 ये 4 नंबर के बीच का, 4 5 2 और 5 के बीच में लगाते हैं तो एक स्ट्रक्चर हमको और मिलता है। इसके बाद हम लोग इस डबल बॉन्ड की पोजीशनिंग और दूसरे डिजाइन से लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं तो यहाँ हमको एक स्ट्रक्चर और मिलता है। अब ये टोटल स्ट्रक्चर कितना होगा, 1 2 3 4 एंड 5, यानी बेंजीन के जो कैनोनिकल डायग्राम्स हैं वो कितने हैं, 5 हैं। यहाँ याद रखना है द टोटल कैनोनिकल डायग्राम्स, canonical diagrams of benzene C6H6 is how much, 5। इस प्रकार से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री में हैं जिनका बिहेवियर जो है विसंगत है, डिस्क्रिपेंसी आपको उसमें मिलेगी। और जो डिस्क्रिपेंसी मिलती है उसका वजह क्या है, उसका वजह यह है कि उस मॉलिक्यूल का डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम्स हो जाता है जिसके वजह से हम इस तरह की घटना को पढ़ते हैं। अब इतने सारे स्ट्रक्चर्स के द्वारा बेंजीन रिप्रेजेंट किया जाएगा और इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस है तो हम क्या करेंगे, रिजोनेटिंग डायग्राम ऑफ बेंजीन बनाएंगे। देखिए रिजोनेंस हाइब्रिड डायग्राम। जब कभी भी मॉलिक्यूल में रिजोनेंस होता है तो हम सिंगल डायग्राम से उसको दिखाते हैं और उस सिंगल डायग्राम रिजोनेंस हाइब्रिड डायग्राम कहलाता है। तो बेंजीन में हमने क्या देखा,
बेंजीन में हमने देखा है जो डबल बॉन्ड रोटेट कर रहा है, डबल बॉन्ड चारों ओर घूम रहा है, तो उसके रोटेशन को हम लोग डॉट डॉट करके एक सर्किल यहां बनाते हैं। अब ये सर्किल क्या बता रही है कि इस मॉलिक्यूल के पास रिजोनेंस है, रिजोनेंस इसके पास है। दूसरा, रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड, रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहां से जो बात हमारे समझ में आ रही है कि अगर रिजोनेंस किस मॉलिक्यूल में मिलेगा, तो रिजोनेंस उसी मॉलिक्यूल में मिलेगा जो अनसैचुरेटेड होगा। यहां देखते हैं कंडीशन ऑफ रिजोनेंस, कंडीशन ऑफ रिजोनेंस, रिजोनेंस only those molecules, only those molecules will show the property, will show this property which are unsaturated, which are unsaturated, जो अनसेचुरेटेड है। बेसिकली कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। ये जब तक नहीं होगा रिजोनेंस नहीं आ सकता, ये संभव नहीं कि रिजोनेंस आ जाए अगर डबल बॉन्ड न हो तो। फिर इसके बाद से हम लोग कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स की ओर बढ़ते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास जो आ रहा है कार्बोनेट आयन है। अब इस कार्बोनेट आयन को हम लोग देखते हैं। ये कार्बोनेट आयन है CO3-। इसके बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये नॉर्मली इसका नाम है कार्बोनेट आयन, ये कार्बोनेट आयन है। इस कार्बोनेट आयन में क्या होता है? आप जानेंगे C का डबल बॉन्ड यहां लगा हुआ और यहां सिंगल बॉन्ड होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो यहां नेगेटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव होने की वजह क्या है? नेगेटिव होने का वजह यह है कि यहां जो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है ऑक्सीजन के लायक नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, बॉन्ड सिंगल है, इसलिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ये डाइवैलेंट मॉलिक्यूल एटम है लेकिन एक ही बॉन्ड बना रहा है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ज्यादा हो जा रहा है। तो इस प्रकार से इसमें डबल चार्ज। अगर हम इसका कैनोनिकल डायग्राम्स बनाना चाहें तो इसका डायग्राम हम बना सकते हैं। ये डबल बॉन्ड जो है शिफ्ट करेगा, यहां आ सकता है। जब यहां डबल बॉन्ड आएगा तो ये CO- हो जाएगा और इस जगह पर आपको डबल बॉन्ड लगेगा, यहाँ O- हो जाएगा। अब ये क्या होता है कि यहाँ का ये डबल बॉन्ड जो है इस पॉइंट पर आ जाएगा। जब डबल बॉन्ड इस पॉइंट पर आएगा तो यहाँ जो हमको मिलेगा रचना C डबल बॉन्ड यहाँ है और ये O- हो जाएगा और ये O- हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि कार्बोनेट आयन जो है वो क्या रखता है? वो रिजोनेंस है। ये रिजोनेंस के साथ ये मॉलिक्यूल है। तो क्यों रिजोनेंस के साथ है? क्योंकि डबल बॉन्ड इसका चारों ओर रोटेट करता है। अब इस रोटेशन को हम रिजोनेंस हाइब्रिड डायग्राम इसका कैसे बनाएंगे? तो रिजोनेंस हाइब्रिड डायग्राम अगर इसका हम बनाए, रिजोनेंस हाइब्रिड डायग्राम, तो रिजोनेंस हाइब्रिड डायग्राम में हमको ये दिखाना पड़ेगा कि रोटेशन जो है कहां इसका चल रहा है। तो C डबल बॉन्ड O यहां लगाएंगे और डबल बॉन्ड कहां आ रहा है? इन्हीं दो ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड पहुंच रहा है, इसी जगह पर वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए हम यहां पास इस तरह के डॉटेड लकीर बनाते हैं। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड इसी जगह पर अपने आप को चलाएगा बार बार। तो ये इसका रिजोनेंस हाइब्रिड डायग्राम है कार्बोनेट आयन का। तो रिजोनेंस के बारे में एक बात जानिए कि रिजोनेंस का अपना एक बड़ा ही लार्ज एप्लीकेशन है केमिस्ट्री में। और अब हम लोग यहाँ एक टर्म पढ़ते हैं या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, रिजोनेंस एनर्जी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट काफी महत्वपूर्ण है, रिजोनेंस एनर्जी। तो रिजोनेंस एनर्जी क्या है ये हम समझते हैं। तो रिजोनेंस एनर्जी यह है कि कैलकुलेशन अगर किया जाए, जैसे हम बेंजीन का केस कर रहे हैं, तो बेंजीन के केस में डबल सिंगल जो भी उसके बॉन्ड्स लगे हुए हैं, अगर सबकी एनर्जी को कैलकुलेट किया जाए तो एनर्जी का एक निश्चित वैल्यू हमको मिलेगा और एक्चुअल एनर्जी को घटाते हैं तो जो एनर्जी की क्वांटिटी मिलती है उसे ही हम लोग रिजोनेंस एनर्जी कहते हैं। यहां लिखते हैं कैलकुलेटेड एनर्जी, कैलकुलेटेड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ the molecule minus observed energy of the molecule, observed energy of the molecule, of
द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की ऑब्जर्व एनर्जी क्या है। तो हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि कैलकुलेटेड एनर्जी क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है ऑब्जर्व एनर्जी से। तो कैलकुलेटेड एनर्जी इज ऑलवेज मोर देन ऑब्जर्व एनर्जी। तो ऑब्जर्व एनर्जी से कैलकुलेटेड एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। यहां रिजोनेंस एनर्जी आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो रिजोनेंस एनर्जी क्या होगा, रिजोनेंस एनर्जी जो है आपको पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसलिए अब रिजोनेंस एनर्जी को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो रिजोनेंस एनर्जी क्या है, रिजोनेंस एनर्जी वह एनर्जी है जिसके द्वारा कोई मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की तुलना में ज्यादा स्टेबल होता है, इसे हमको रिजोनेंस एनर्जी कहते हैं। और रिजोनेंस एनर्जी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ये मैथमेटिकल फॉर्म था जहां से हमने रिजोनेंस एनर्जी को समझने की कोशिश की थी। तो रिजोनेंस एनर्जी को डेफिनेशन क्या हम देंगे, रिजोनेंस एनर्जी is the energy by which a molecule is stabilized with respect to the analogous molecule. अब एनालॉगस मॉलिक्यूल जो है उसी के जैसा कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें रिजोनेंस नहीं हो, उसे हम लोग एनालॉगस मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल ऐसा ही हो लेकिन रिजोनेंस उसके अंदर ना हो, तो उस मॉलिक्यूल की तुलना में ये मॉलिक्यूल जितना स्टेबल होगा उसे ही हम लोग रिजोनेंस एनर्जी कहते हैं। अब रिजोनेंस एनर्जी जो हमने यहाँ डिफाइन किया, अब रिजोनेंस एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि विच इज द फैक्टर विच कंट्रोल्स रिजोनेंस एनर्जी। हम देखते हैं ऑन विच फैक्टर resonance energy depends, वो कौन सा फैक्टर है जिस पे रिजोनेंस की एनर्जी डिपेंड करती है। तो रिजोनेंस की एनर्जी डिपेंड करती है, उसको मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूं कि रिजोनेंस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन कैनोनिकल डायग्राम्स, depends upon the number of canonical diagrams, और ये डिपेंडेंस किस रूप में है, ये डिपेंडेंस डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट में क्या, the more the canonical diagrams, the more the stabilization, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का कैनोनिकल डायग्राम होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर हम पीछे जो हमने रचना देखी, अगर केवल हम डायग्राम के आधार पर सवाल बनाते हैं कि स्टेट विच मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल, कार्बोनेट आयन और बेंजीन, सपोजिंगली एक सवाल ऐसा बन जाए जिसका जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस डायग्राम पर ही देना हो, तो क्या उसमें आपका आंसर होगा। इस बात को हम केवल एक बात को सामने रख के सवाल बना रहे हैं कि विच इज मोर स्टेबल बेंजीन और कार्बोनेट आयन और CO3 माइनस आयन। अगर केवल हमको रेजोनेंस के आधार पर जवाब देना हो तो हम क्या करेंगे, यहां बेंजीन में 5 कैनोनिकल डायग्राम्स हैं, यहां 2 कैनोनिकल डायग्राम्स हैं, 3 कैनोनिकल डायग्राम्स हैं, इसलिए स्टेबल कौन होगा,
Benzene is more stable. Benzene is more stable as it has more canonical diagrams. Has more canonical diagrams in comparison to carbonate ion. In comparison to carbonate ion. अब जो कार्बोनेट आयन की तुलना में बेंजीन के पास बहुत ज्यादा केमिकल डायग्राम्स हैं, इसलिए बेंजीन ज्यादा स्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी का फैक्टर किस पर डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी का फैक्टर डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैनोनिकल डायग्राम्स। जितना ज्यादा कैनोनिकल डायग्राम्स होगा उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, जितना कम कैनोनिकल डायग्राम्स होगा उतना ही कम स्टेबल होगा। अब इस रिजोनेंस के रास्ते कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जगह पर एल्कोहल इज न्यूट्रल while carboxylic acid functions as an acid। यहां जो सवाल बना है कि एल्कोहल न्यूट्रल है। केमिस्ट्री में ऑक्सो एसिड्स का एक कॉन्सेप्ट है, तो आप याद रखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट है, हमको इसे ठीक से समझना है। The hydrogen which is attached to oxygen will go into the solution. The hydrogen in a molecule, the hydrogen in a molecule which is attached to oxygen is displaceable hydrogen, displaceable। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, डिस्प्लेसेबल हो जाएगा। लेकिन यहां जो केस हमने डाला है उस पर ध्यान देखिएगा कि वो डिस्प्लेसेबल क्यों नहीं बनता है और किसी जगह पर डिस्प्लेसेबल क्यों हो जाता है। इसका जवाब यहां हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एल्कोहल को हम उठाते हैं ROH, ये आपका एल्कोहल है, और इस एल्कोहल को का आयनाइजेशन अगर कराया जाए तो RO- ये आयन बनेगा। RO- क्या है? एल्कोक्साइड आयन है और यहाँ पे H+ आयन। लेकिन ये आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं, हालांकि इस रूप में आयनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सो एसिड का जो कॉन्सेप्ट है कि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है वो बाहर जाएगा ही जाएगा। तो जब ये बाहर जाएगा तो आखिरकार ये बाहर जाता क्यों नहीं है? क्या परेशानी है इसके बाहर जाने में? तो यहां हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि एल्कोक्साइड आयन बनता है, H+ आयन बनता है। लेकिन ये जो चार्ज है आपका, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज कंप्लीटली अपने पॉइंट पर रह जाता है। तो यहां क्या होगा? कोलम्बिक अट्रैक्शन होगा, कोलम्बिक अट्रैक्शन होगा, और इस अट्रैक्शन के कारण क्या होगा? ये आयनाइजेशन फेल हो जाएगा। The ionization fails because RO- ion is highly reactive, आयन काफी रिएक्टिव है और इसलिए यह आयनाइजेशन फेल कर जाता है। जब ये फेल कर गया, H+ आयन सॉल्यूशन में नहीं जाएगा, तो ROH क्या है? Thus ROH is neutral. ROH आपका न्यूट्रल है। अब इससे आगे बढ़ के अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को देखते हैं कि उसका आयनाइजेशन किस आधार पे सफल हो जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के आयनाइजेशन को देखते हैं। यहाँ तो CH3 C डबल बॉन्ड O
ONH जब ये एनाइज करेगा तो इसके एनाइज करने से क्या होगा, CH3 नॉर्मल जो है वो मैं लिखता हूं आपको, CH3CO माइनस प्लस H प्लस ये बनता है। यह ना आपका एसीटेट है, एसीटेट आयन। अब एसीटेट आयन के बारे में हम क्या कहेंगे, दिस आयन इज स्टेबलाइज, दिस आयन इज स्टेबल, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण यह आयन क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। यहां पर देखते हैं CH3C और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां है, सिंगल ऑक्सीजन ये है। तो क्या होगा आगे चल करके, ये अपना रेजोनेटिंग डायग्राम बनाएगा। तो रेजोनेटिंग डायग्राम जो बनेगा CH3C और यहां हो जाएगा O माइनस और यहां हो गया आपका डबल बॉन्ड O। तो जैसे ही H प्लस बाहर जाता है यहां से, वैसे ही क्या होता है, इसका चार्ज खत्म हो जाता है। ये चार्ज कैसे खत्म होता है, ये रेजोनेंस बनाता है, रेजोनेंस के रिश्ते डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, चार्ज इसका खत्म हो जाएगा। जब चार्ज खत्म होगा तो H प्लस आयन सॉल्यूशन में जाने में कामयाब हो जाएगा। ये रेजोनेंस के कारण एसिटेट आयन स्टेबल होता है और इसलिए ये एसिडिक बिहेवियर देने में कामयाब हो जाता है। सो इट शोस एसिडिक प्रॉपर्टी, शोस एसिडिक प्रॉपर्टी, और ये वजह है कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी अपना शो करता है। तो इस प्रकार से हमने ये रेजोनेंस के एप्लीकेशन को देखा। रेजोनेंस का बहुत लार्ज एप्लीकेशन है और मूलतः ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को अगर आप बहुत अच्छे से नहीं जानते, प्लस आर माइनस आर डायग्राम अगर आपको समझ में नहीं आता है और वो डायग्राम आपसे नहीं बनते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो सकता है। तो वहां के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका अपना महत्व है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है अपना डिस्क्रिपेंट बिहेवियर जो शो करते हैं, तो उसके पीछे रेजोनेंस एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब आगे हम लोग जो थियरी हमको आज पढ़नी है, जिसकी शुरुआत लेना है, क्योंकि ये थियरी काफी लंबा है और इट्स नॉट इजी टू कंप्लीट द थियरी इन वन एपिसोड। सी एनीवे, तो केमिकल कॉम्बिनेशन में ये फर्स्ट थियरी सामने आई, वो थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, रिपल्सन थियरी, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी ये पहली थियरी है जो केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ रहे हैं, और ये थियरी, इस थियरी के मेन पोस्टुलेट्स को हम लोग देखते हैं। तो मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द थियरी, मेन पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स ऑफ द थियरी, ऑफ द थियरी। तो व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द थियरी? नंबर वन, the shape of the molecule, the shape of the molecule, see, molecule depends upon the number of total valence electrons, total valence electrons present upon the number of total valence electrons bonded or non-bonded, bonded or non-bonded, चाहे वो बॉन्ड बनाता हो या बॉन्ड ना बनाता हो, शेप जो है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन किसके इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है? सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। द electron is considered of central atom, is considered of central atom, central atom के इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। अब सेंट्रल एटम का मतलब क्या होता है? सेंट्रल एटम का मतलब होता है कि जिससे बॉन्डिंग करके कई एटम्स जुड़े हुए हैं। यहां लिखते हैं सेंट्रल एटम is that atom with which different atoms are attached, with which
different atoms have made bond, have made bond, जिसके साथ बहुत सारे एटम्स अपना बॉन्ड बनाते हैं। जैसे AlCl3 आप लेते हैं, AlCl3, तो इसका अगर बॉन्डिंग हम दिखाएं किस रूप में दिखेगा, AlCl, यहां Cl होगा और ये Cl होगा, तो ये क्या है आपका सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम है। इस प्रकार से सेंट्रल एटम आप और भी कई दिखा सकते हैं, अमोनिया को दिखा सकते हैं, H2O दिखा सकते हैं। तो पहला चीज क्या है, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इन सेंट्रल एटम। एंड सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, वैलेंस सेल इज रिप्रेजेंटेड, सेकेंड पॉइंट है वैलेंस सेल इज रिप्रेजेंटेड as a sphere, valence cell is represented as a sphere, in which electrons are standing at maximum distance. Electrons are standing at maximum distance, मैक्सिमम डिस्टेंस, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर खड़े हैं। अब इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस पर क्यों खड़े हैं, तो ये समझना है। मैक्सिमम डिस्टेंस पर इसलिए खड़े हैं कि देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्शन, देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्सन among electrons, because they all bear the same charge, they all bear the same charge, और वो सेम चार्ज क्या है, नेगेटिव, क्योंकि सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस हिसाब से क्या होंगे, काफी दूर तक वो स्फीयर में खड़े होने की कोशिश करेंगे। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी का, यह है कि अगर डबल बॉन्ड बना है और ट्रिपल बॉन्ड बना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये तो हमारा सिद्धांत है, उसको क्या मानेगा, इफ एन एटम इज अटैच्ड, if an atom is bonded to the central atom, by double or triple bond, by double or triple bond, it is treated as a single bond, it is treated as a single bond, इसे हम लोग सिंगल बॉन्ड के रूप में ही ट्रीट करते हैं। और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या है, सुपर बॉन्ड। हियर दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सुपर बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सुपर बॉन्ड, यहां ये बॉन्ड जो है सुपर बॉन्ड के रूप में माना जाता है। अब अगर रिएक्शन हुआ, बॉन्डिंग बनी, तो बॉन्डिंग बनने के बाद क्या होगा, बॉन्डिंग बनने के बाद ये होगा कि बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल में के निर्माण होने के बाद क्या घटना घटेगी वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट पॉइंट जो कुछ भी है इसका लास्ट पॉइंट ये है, after the bond is made, all bonds will move away from one another,
as far as possible, as far as possible, possible। अगर ये बॉन्ड आपका बन जाता है तो बॉन्ड बनने के बाद जो बॉन्ड्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे से उतनी दूर भागने की कोशिश करेंगे जितना दूर वो भाग सकते हैं, और ज्यादा भागने के वजह क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमाइज होगा। यहां हम लिखते हैं as far as possible to maximize the distance, maximize the distance, to maximize the distance and minimize the energy, minimize the energy, minimize the energy, अपनी एनर्जी को कम करें। अब यहां एनर्जी के कम होने की बात कहां से आती है, क्योंकि रिपल्सन लीड्स टू द राइज इन एनर्जी, रिपल्सन leads to the rise in energy, leads to the rise in energy, rise in energy। रिपल्सन एनर्जी को बढ़ाता है। अगर ये एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल क्या अनस्टेबल हो जाएगा, टूट जाएगा मॉलिक्यूल, इसलिए बॉन्ड्स जो है एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करते हैं। अब यहां जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स लगता है उसकी कंपैरेटिव वैल्यू देखिए, competitive value of forces, competitive value of forces, यहां जो फोर्स खड़े हो रहे हैं उनकी कंपिटिटिव वैल्यू क्या है, तो लोन पेयर फोर्स is more than लोन पेयर बॉन्ड पेयर फोर्स, बॉन्ड पेयर फोर्स, और लास्टली बॉन्ड पेयर फोर्स, बॉन्ड पेयर फोर्स। ये आप इसको फोर्स ना लिख करके रिपल्सन भी लिख सकते हैं, रिपल्सन, ये फोर्स की जगह पर रिपल्सन लिखा जा सकता है, आप यहां भी फोर्स ना लिख करके रिपल्सन लिख सकते हैं, और यहां भी अगर आप चाहें तो रिपल्सन लिख सकते हैं। ये इसका सिद्धांत है। तो VSPER, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिन सिद्धांतों पर काम करती है उसके जो मूलभूत कॉन्सेप्ट्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, वो आपको मैंने बता दिया। और कल हम लोग इस VSPER थ्योरम का एप्लीकेशन देखेंगे, और कल ये मॉडल जो है, ये जो थ्योरी है, कल समाप्त हो जाएगी। Dear students, you try to understand the concepts, and if you have any doubt, any problem in making the sense of what I am teaching here, then you can put your doubts, your questions on the group that is supplied to you. Thank you guys. Thank you a lot.